Hello, students. Welcome to the Unacademy. Let's crack all 8 CBC exam with us. We have top educators, quality content, and you may feel great learning experience over there. So let's crack CBC 8th. This is about me. My name is Mohit Pandey. I have done MTech in Computer Science Engineering and BTech in Information Technology. I'm PhD pursuing GATE qualified and NET qualified and having more than 7 years of teaching experience and author of various research articles and book chapters. So let's crack CBC classes with India's largest learning platform. You need to get subscribed it, and the benefits of these subscriptions are you have chance to join the daily life classes. In the daily life classes, you can discuss with your educator, ask your doubt, and clear your doubts, right? And you also join our live tests and quizzes, right? And you access in the unlimited fashion means you can watch our recorded and live sessions from the anywhere and anytime and from your any device. And the Unacademy courses are structured in a way like your CBSE pattern, which makes you better marks and better results, right? And you may also join these free live classes. The Unacademy educators are the top educators. They are highly qualified and experienced faculty over there. So that's why they are top, right? And your syllabus is managed in a comprehensive way, like maths, science, English, Hindi, social science, computer science. Each and every subject is based on the CBSE pattern, right? And we follow NCERT book always, right? Okay, and for each subject there are multiple educators. That's too good. There is an Academy Learning app. You need to download it from the Google Play Store and install on your device. And for the talk to us and getting update, there is a Telegram app. Just download it and type the link in the URL and tap on the join for latest updates about for upcoming videos, right? So this is about the pricing, and pricing बेटा बहुत इंपॉर्टेंट. फी कितनी लगेगी सब्सक्राइब करने के लिए? 1 मंथ का प्लान बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज इट इज कॉस्टली. 25 मंथ पर मंथ आपको देने होंगे. 12 मंथ या 24 मंथ के लिए जाइए, इसमें आपको 50% डिस्काउंट हो जाता है. देखिए 1250 रुपीज़ और या फिर 1040 रुपीज़. 1 ईयर का 15,000 और 2 ईयर का 25,000. ये बहुत ही कम है. इफ़ यू यूज दिस कोड लाइव एम पी LIVEMP कोड, देन बेटा क्या होने वाला है, then you get extra discount, right, of the 10%. So you go with 12 months, or 12 months you will get 1,500 rupees discount. This price become 13,500. This price become 22,500. So these are best plan. Don't go with the 1 month, right? Use code LIVEMP for getting maximum discount, right? Okay, now comes to the our point. This is your topic in the sequence of learning coding in C++. Beta, we are going to learn C++, right? So today's topic of this series is introduction to C++. In this session, बच्चे आज हम we are going to learn about, we are going to know about the C++, right? हम आज ये जानने जा रहे हैं क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. are written over there. Introduction to C++. What is C++? ये जानेंगे. Why we use C++, right? C++ में अगर कोडिंग करना है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मीन्स क्या सॉफ्टवेयर चाहिए होगा आपको, वेयर यू राइट अ कोड, राइट, हाउ यू राइट अ फर्स्ट कोड. ये सारी बातों का आज हम पता लगाने वाले हैं. और हम देखेंगे C++ का प्रोग्राम का सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है आपके प्रोग्राम का, वो कैसा दिखता है. जिसकी वजह से आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख पाएंगे. जब तक आपको बच्चे ये नहीं पता होगा स्ट्रक्चर क्या है, तब तक आप फर्स्ट प्रोग्राम भी नहीं लिख पाएंगे. सो यू नीड टू नो व्हाट इज द सिंटेक्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सी प्रोग्राम, राइट? And we also write our first program in C++ with displaying some output, right? We also know about how change the line in the text. This type of the introduction we are going to discuss in this series, right? इस series के बाद फिर हम और advanced level पे step by step बढ़ते चले जाएंगे. Now the time
टू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। बच्चे सी प्लस प्लस क्या होता है, अगर बड़ी सहज भाषा में बोलें तो सी प्लस प्लस इज नथिंग बट अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज जो बच्चे प्रोग्राम लिखने के काम में आती है। और प्रोग्राम से बनते हैं बच्चे सॉफ्टवेयर, राइट। एप्लीकेशंस बनती हैं जो कहाँ पे रन होगी, आपके कंप्यूटर पे रन होने वाली हैं, राइट। तो हम ऐसी लैंग्वेज लिखने वाले हैं जो कंप्यूटर के समझ में आती है, दैट इज सी प्लस प्लस। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक सी प्लस प्लस हम आज पढ़ने जा रहे हैं, राइट। सो सी प्लस प्लस यूज टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वेरी सिंपल। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में हम लिखते क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं व्हाट इज सी प्लस प्लस। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सी प्लस प्लस क्या है, बहुत ही आसान सी भाषा में कुछ पॉइंट सी प्लस प्लस के बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। सी प्लस प्लस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज that can be used to create high performance application, right। C++ एक प्लेटफॉर्म है बच्चे, लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस लिखते हैं। मींस हाई परफॉर्मेंस बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स, छोटे भी ऑफ कोर्स, अगर हम बड़े बना सकते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं तो ऑफ कोर्स छोटे भी बना सकते हैं। सो सी प्लस प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है वेयर वी क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स, राइट। सी प्लस प्लस किसने डेवलप करी, सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाई बेजाने स्ट्राउस्ट्रप एज एन एक्सटेंशन टू दी सी लैंग्वेज। बच्चों सी प्लस प्लस से पहले होती थी एक, अभी भी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। इस सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन ही है सी प्लस प्लस। आपको नेम में भी लग रहा होगा, देखिए ये सी लिखा और सी में प्लस प्लस कर दिया, मीन्स एडिशन इन दी सी, राइट, एक्सटेंशन ऑफ सी। And C++ gives what? Programmers a high level of control over system resources and memory। C++ जो प्रोग्रामर्स हैं उनको क्या मिलता है, एक हाई लेवल का कंट्रोल मिलता है, किसके ऊपर, सिस्टम के, सिस्टम कौन, कंप्यूटर, उनके रिसोर्सेज और उनकी मेमोरी पे, राइट। मतलब कि इसका क्या हुआ, हाई लेवल की बात क्या है, आपने सुना होगा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, राइट, या फिर मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो होती हैं जिन पे उतना कंट्रोल नहीं होता, उनको आपको डायरेक्ट मशीन से बात करनी पड़ती है। सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप मशीन से दूर रह के, मीन्स आप मशीन से दूर रहने का मतलब ये है आप डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप एक प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस में, वो फिर कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में, राइट। और आप दूर बैठ के, राइट, एक हाई लेवल पे बैठ के, मीन्स काफ़ी ऊंचाई पे, ऊंचाई कितनी देखिएगा बच्चे, एक ये अगर आपका हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर आपकी मशीन लैंग्वेज है, इस मशीन लैंग्वेज के ऊपर आपकी असेंबली लैंग्वेज है, इसके ऊपर या फिर लो लेवल लैंग्वेज है, इसके ऊपर बैठे हैं बच्चे आप हाई लेवल लैंग्वेज में, और इसके ऊपर हाई लेवल पे आता है आपका सी प्लस प्लस। इस हाइट से आप हार्डवेयर, हार्डवेयर रिसोर्स यहीं पे है, हार्डवेयर में ही तो है ना बेटा, सिस्टम के रिसोर्स और मेमोरी सब हार्डवेयर में है, इस हाई लेवल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फ्रॉम दिस हाइट। और हाइट पे रहने का फायदा क्या है कि आप डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको मशीन आपको मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट इज वेरी टफ टू राइट program in the machine language, right। So C++ is easy, right। Now next point is what, क्या हुआ, क्या इनके वर्जन्स आए उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेंगे। लैंग्वेज वाज अपडेटेड 3 मेजर टाइम्स, मेजरली वैसे बहुत बार ये इसमें अपडेट्स हुए, बट 3 मेजर अपडेट हुए 2011 में, 14 में एंड 17 में, राइट। सी प्लस प्लस 11 आई, फिर 14 आई, 17 आई, 11 2001 में, 14 2014 में, सी प्लस प्लस 17 2017 में। बस इस लेवल पे आप यही मानिए, दिस इज सी लैंग्वेज एंड ऑल फीचर्स आर वेरी इक्वल, राइट। Now the time is to know about why we use C++, means क्या रीजन है जो मैं C++ को यूज करूं, why। C++ is one of the world's
दुनिया की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज अभी तक नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस एक्सटेंशन है सी का, और सी खुद में ही बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, राइट। एंड सी प्लस प्लस कैन बी फाउंड इन टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में सी प्लस प्लस मिलती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस मीन्स GUI एंड एम्बेडेड सिस्टम्स में ये मिलती है। आपके चाहे GUIs हो या एम्बेडेड सिस्टम्स हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उन सब में सी प्लस प्लस आपको मिलेगी, राइट। सो एंड द बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट, सी प्लस प्लस इज एन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक नया पॉइंट है बच्चे, ये सी में नहीं होता, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता, लेकिन सी प्लस प्लस में होता है, राइट। which gives a clear structure to programs and allow code to be reused, lowering development cost, right। आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से फायदा क्या है? इसमें बच्चे जो हम कोड लिखते हैं ना, एक बार आप कोड लिखेंगे उसी प्रोग्राम में उसी पर्टिकुलर कोड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। मींस एक ही चीज आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। बार बार आप ना लिखेंगे मतलब उसको यूज तो कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। और जब आप यूज कर सकते हैं, बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को, उससे होगा क्या? आपकी मेहनत बचेगी। मेहनत बचने का मतलब क्या है? जो डेवलपर होगा उसको पे मिलती है, जब उसको काम कम करना पड़ेगा तो कम पैसे पे करने पड़ेंगे। सो बड़ी अच्छी सी बात है कि लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, उसको बनाने की जो कॉस्ट है बच्चे वो कम हो जाने वाली है, राइट। Second thing is C++ is portable, right, and can be used to develop applications that can be adapted to multiple platforms. Portable है मतलब इसके लिए बहुत कोई हाई फाई सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के साथ भी C++ प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। एंड कैन बी यूज टू डेवलप, और किसके लिए क्या डेवलप करेंगे? एप्लीकेशंस, राइट। वो भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल सकती होगी, राइट। एंड C++ is close to C Sharp and Java, इसके जैसी ही है, राइट। इट मेक्स इट्स easy for programmers to switch to C++ और वाइस वर्सा। C++ से आप जावा में जा सकते हैं। कोई प्रोग्रामर कोई कोड C++ में लिखा है तो बहुत इजी होता है बच्चे उसको जावा में कन्वर्ट करना, या फिर जावा में लिखा है तो उसको C++ में कन्वर्ट करना इजी होता है। दीज आर द रीजंस व्हाई वी यूज C++। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस टेक्स्ट को एक बार पढ़िए और एक बार दोबारा थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाइए और दोबारा इसको सुनिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। और नहीं समझ में आए तो थर्ड टाइम भी आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज यू आर हेयर टू लर्न, राइट। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हेयर वी आर गोइंग टू start with C++ means what to do if you want to write a program। अगर बच्चे आपको एक प्रोग्राम लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टू स्टार्ट यूजिंग C++ को यूज करने का मतलब यू वांट टू राइट अ कोड, यू नीड टू थिंग्स। वो दो चीज कौन सी हैं? पहली चीज ये लिखी हुई है, फर्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए? एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। सिंपली एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें बच्चे हम टेक्स्ट मतलब टाइप कर सकते हैं। वी आर एबल टू टाइप समथिंग लाइक अ नोटपैड। जैसे हम HTML में भी अपना HTML लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? नोटपैड में लिखते हैं। तो जस्ट यू नीड अ नोटपैड, यू मे राइट योर कोड इन द नोटपैड टू राइट C++ कोड, राइट। कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आप नोटपैड में ही इसको लिखेंगे और .cpp एक्सटेंशन लगा के, .cpp एक्सटेंशन लगा के यहाँ पे आएगा आपका फाइल नेम, और इसको क्या करेंगे बच्चे? सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद फिर क्या करने वाले हैं? सेकंड की चीज क्या चाहिए? आपको चाहिए C++ का कंपाइलर, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके प्रोग्राम को, जो आप प्रोग्राम आपने लिखा है, जो कोड आपने लिखा है उसको कंपाइल कर सके। कंपाइल का मतलब क्या है? आपके प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि C++ में लिखा गया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। लाइक वो कौन से हो सकते हैं? GCC नाम का एक कंपाइलर हो सकता है, टू ट्रांसलेट द C++ कोड इनटू अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड।
कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सके। वो कौन सी लैंग्वेज होगी बच्चे? मशीन लैंग्वेज होगी, राइट। सो यू नीड टू थिंग्स, वन इज टेक्स्ट एडिटर एंड अ कंपाइलर। या फिर बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या सिस्टम्स हैं जिसमें एडिटर और कंपाइलर दोनों इनबिल्ड होते हैं बेटा। आप उसी का यूज करिए, तो आपको अलग अलग टेक्स्ट एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कंपाइल करेंगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बेटा आईडीई पे ही बनते हैं। देयर आर मेनी टेक्स्ट एडिटर्स एंड कंपाइलर्स, बहुत सारे हैं टेक्स्ट एडिटर कंपाइलर्स, राइट। और आप यू कैन यूज एन आईडीई, चाहे आप एडिटर्स और कंपाइलर दोनों को कंबाइन करके यूज करिए, या फिर जनरली आप आईडीई यूज कर लीजिए, राइट। एंड आईडीई व्हाट, क्या होता है आईडीई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या चीज है? ये एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है बच्चे, जिसमें एडिटर भी होगा और कंपाइलर भी होगा, राइट। सो हाउ टू इंस्टॉल द C++ IDE? I refer you also to use IDE, okay, because it's great experience. You may feel good, आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चे इसमें प्रोग्रामिंग करके। And IDE is used to edit means like a text editor, जैसे उसमें हम टाइप, एडिट का मतलब यू आर टाइपिंग सम योर कोड, राइट। एंड लिखा हुआ है यहाँ बड़ा सा, देखिएगा, एडिट भी करेगा नंबर एक चीज, एंड कंपाइल भी करेगा, राइट। मींस ये जो दो चीजें हमको चाहिए होती हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, दोनों काम ये करने वाला है बच्चे, एडिट भी करने वाला है और कंपाइल भी करने वाला है आपके कोड को। दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग यू, राइट, IDE, राइट। बहुत सारी IDEs, पॉपुलर IDEs अवेलेबल हैं, राइट। लाइक कोड ब्लॉक उनमें से एक है, बहुत ही पॉपुलर है, right. Eclipse is also very popular IDE, right, and Visual Studio is also very popular IDE. There are all free of cost, कुछ पैसे नहीं देने हैं, दिस इज फ्री। मतलब आप देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है, एक ऐसी प्लेस जहां पे प्रोग्राम आप लिख भी सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा फ्री में। और आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है, क्या लिखना है, वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, राइट। आप स्लो प्लेस पे, फास्ट प्लेस पे, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप सीखते जाइए, एक एक वीडियो देखते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा यू आर एबल टू राइट a good and program for a good application or a big application, right, and they can be used to both edit and debug C++ कोड, राइट। ये फ्री भी है और इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट मतलब राइट कर सकते हैं प्रोग्राम को, और डिबग भी कर सकते हैं। कोई इसमें परेशानी आती है ना, आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्वाइट पॉसिबल ह्यूमंस ने लिखा है, तो कोई एरर होगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इसमें लिखते हैं अपने नोट पैड में, उसमें ये सुविधा नहीं होती। बच्चों कोई प्रॉब्लम होती है तो वन बाई हमको ढूंढना पड़ता है, लेकिन आईडी में डिबग करने की फैसिलिटी होती है। आप मार्क लगा सकते हैं, चेक मार्क लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है इस बिलो दिस चेक मार्क ही कोई प्रॉब्लम है, अपर दिस चेक मार्क इज नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा इजी तो बच्चों हो ही जाता है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये आईडी के बारे में ही लिखा हुआ है बच्चे, कैसे क्या करेंगे मैं आपको एक लिंक बता देता हूं जहां से आप कोड ब्लॉक डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वी विल यूज कोड ब्लॉक इन आवर ट्यूटोरियल। जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें बच्चे हम कोड ब्लॉक का ही यूज कर रहे हैं, विच वी बिलीव इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, जो आपके लिए एक अच्छी प्लेस है। बाकी इक्लिप्स वगैरह भी अच्छे हैं, बट उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस भी मिलेंगी। बट आप कोड ब्लॉक के साथ जाएं, यू जस्ट टाइप दिस URL ऑन योर ब्राउजर, राइट। यू कैन फाइंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ कोड ब्लॉक at this link and download mingw setup.exe फाइल। इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए, विच विल इंस्टॉल द टेक्स्ट एडिटर विद अ कंपाइलर। उसमें टेक्स्ट एडिटर भी होगा और कंपाइलर भी होगा, इससे अच्छी बात बच्चों क्या ही हो सकती है, राइट। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप इस कोड को, इस लिंक को अपने पास रखिए, आप लिख सकते हैं कॉपी पे, और या फिर इसको बाद में रिकॉर्डेड सेशन में देख के दोबारा लिख सकते हैं अगर आप अभी लिखना भूल जाएं या आप लिख नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर लिंक ऑन योर नोटबुक। बट मैं चाहूंगा जरूर लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसका पिक ले लीजिए, राइट, क्योंकि दोबारा ढूंढेंगे तो भी उसमें बच्चों टाइम जाने वाला है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
जब आप आईडी अपना इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट सी प्लस प्लस फाइल, ठीक है, तब हम बनाएंगे अपनी सी की पहली फाइल। ओपन कोड ब्लॉक्स, ठीक है, जो आपने कोड ब्लॉक डाउनलोड किया है ना अभी, ये वाला, ये वाला जो कोड ब्लॉक यहां से डाउनलोड किया था, उस कोड ब्लॉक को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बच्चे उसमें ऊपर मेन्यूज होते हैं, उसमें पहला मेन्यू होगा फाइल, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें लिखा होगा न्यू। न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद बच्चे एक बढ़िया सी साफ सुथरी सी एक एम्प्टी फाइल आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी, राइट। नाउ यू आर एक्साइटेड अबाउट राइटिंग अ न्यू प्रोग्राम, राइट। जब ये ओपन हो जाए बच्चे, तब आप क्या करें, राइट द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड, ये जो कोड नीचे लिखा हुआ है उसको आप लिखिए, ठीक है, एंड सेव द फाइल एज माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट cpp, राइट। माई फर्स्ट प्रोग्राम इज द नेम ऑफ योर प्रोग्राम। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ योर फर्स्ट प्रोग्राम। ये बच्चे आपके फाइल का, आपके प्रोग्राम का जो भी आपने बनाया है प्रोग्राम, चाहे पहला बनाए चाहे सेकेंड या कितना भी प्रोग्राम बनाए, ये प्रोसेस तो आपको करना ही होगा और अपनी फाइल का एक नाम देना होगा। फाइल किसका, उस फाइल में जिसमें आपका कोड लिखा हुआ है। एंड डॉट सीपीपी लगाएंगे। सीपीपी, सीपीपी का बच्चे मतलब है यहाँ पे, सीपीपी का मतलब सी फॉर सी होता है, पी फॉर प्लस होता है, एंड दिस पी एडिशनल प्लस, राइट। पहले पी का मतलब प्लस है, दूसरे पी का मतलब भी प्लस है, और सी का मतलब सी होता है, इसलिए बच्चे हम डॉट सीपीपी से सेव करते हैं। और डॉट सीपीपी क्या है, डॉट सीपीपी, डॉट सीपीपी फाइल का एक्सटेंशन है। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कौन सी फॉर्मेट की फाइल है, राइट। लाइक टेक्स्ट में डॉट टीएक्सटी होता है, एमएस वर्ड में फाइल लिखी डॉट डीओसी होता है, राइट। पीपीटी है, कोई प्रेजेंटेशन है डॉट पीपीटी होता है, कोई सॉन्ग है डॉट एमपी3 होता है, कोई पिक्चर है तो जेपीईजी डॉट पीएनजी होता है, या फिर कोई मूवी है तो डॉट एमपी4 हो सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चे कि ये एक्सटेंशन सी प्रोग्राम का डॉट सीपीपी होता है। सी में प्रोग्राम लिखा है तो डॉट सी होता है, राइट, बट वी आर राइटिंग सी प्लस प्लस, सो यू मस्ट राइट डॉट सीपीपी। और उसमें क्या लिखिएगा बच्चे, आप ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लीजिएगा। बिल्कुल मत घबराइए कि इस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, ये क्या इसमें होने वाला है, आप बिल्कुल मत सोचिए। आप ये सोचिए कि एक सिंपल सा प्रोग्राम है, और ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। आगे आने वाले टाइम में बच्चे इससे कई बड़े बड़े प्रोग्राम आप बना सकेंगे, इस बात की मैं गारंटी तो ले सकता हूं। तब लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे, सारी सीरीज को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ऑफ कोर्स और प्रैक्टिस करेंगे, तब ऐसा अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी जरूर लेता हूं कि आप एक दिन बड़े बड़े प्रोग्राम बना पाएंगे, राइट। ये तो बड़ा ही छोटा प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इज नथिंग बट प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन योर screen. This program is only printing hello world with exclamation. This nothing else, right? हम इसके बारे में अभी आगे देखेंगे, इसको वन बाय वन समझेंगे कि इसका इंक्लूड का क्या मतलब है, यूजिंग नेम स्पेस क्या है, इंट मेन क्या है, काउट हेलो क्या है, रिटर्न जीरो क्या है, ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, इस सब के बारे में हम आज इसी वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। कल का इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, now 1 minute, I need to remove this all ink from here. This is not removing. Erase all link on site, right? Now see what happened. अब हम थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। इस प्रोग्राम में बच्चे आप देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा ये फर्स्ट पार्ट, ये पहली लाइन, फिर मैं लाइंस में डिवाइड कर रहा हूँ, ये सेकेंड लाइन, राइट, फिर ये गैप है इसको भी मैं बोल देता हूँ दिस इज थर्ड लाइन, फिर ये फोर्थ लाइन,
आप समझिएगा, मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने जो वाइट स्पेस है इसको भी ऐड कर लिया, दिस फिफ्थ लाइन, राइट, ये सिक्स लाइन। बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये आपकी सेवेंथ लाइन। इस पूरे प्रोग्राम में टोटल बच्चों 7 लाइंस दिख रही हैं, राइट, 7 लाइंस। एक एक लाइन को बड़े आराम से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। पहली लाइन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है हैश। इस सिंबल को बेटा हम हैश बोलते हैं, आप देखते होंगे हैश टैग वगैरह लगाते हैं। सो दिस सिंबल इज हैश इंक्लूड। इंक्लूड का क्या मतलब होता है? इंक्लूड का मतलब इंग्लिश में अगर बात करें, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करें मीन्स अपने में जोड़ें, जो आप करंट हैं उसमें, और एडिशनल एक्सटर्नल बाहर से कुछ जोड़ लें, राइट, इन कर लें, राइट। सो यहाँ पे ये एक स्पेशल कमांड है सी प्लस प्लस का, और सी का भी है कि हैश इंक्लूड, इंक्लूड करना है अपने, किससे इंक्लूड करना है? अपने इस प्रोग्राम से इंक्लूड करना है या ऐड करना है। किसको? जिसको ऐड करना है बच्चे, वो इस एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है। ऐड करना है आईओ स्ट्रीम को, राइट। आईओ स्ट्रीम एक एडिशनल फाइल है जो पहले से सी में, सी प्लस प्लस में स्टोर्ड होती है। इस फाइल की हमको जरूरत पड़ती है, राइट। इस फाइल की हमको जरूरत पड़ती है कब? जब हम अपना प्रोग्राम यहां लिख रहे होते हैं। इसमें जो कुछ फंक्शंस हैं जिनका हम यूज करेंगे, आप समझिएगा, इसमें कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, वो इन फाइल्स में होते हैं, ठीक है। अगर इस फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे तो उन कमांड्स का इस्तेमाल या यूज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसीलिए हम इसको लिखते हैं। लिखने का तरीका बच्चे ये है कि हैश इंक्लूड आपको लिखना पड़ेगा और एंगल ब्रैकेट के अंदर उस फाइल का नाम लिख दीजिए जिसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना चाहते हैं। और मजे की बात यह है बच्चे, आईओ स्ट्रीम ऐसी फाइल है जो आपको अपने हर प्रोग्राम में, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में ऐड करनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस लिखे होते हैं, राइट। कि कैसे आपके प्रोग्राम से इनपुट लिया जाएगा, कैसे आपका प्रोग्राम आउटपुट देगा, ये सारी फंक्शनैलिटीज, ये सारी कमांड आईओ स्ट्रीम के अंदर लिखे हुए हैं। वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ही लिखे हुए हैं, लेकिन वो लिखे हुए हैं, उनका आपको यूज करना है तो आपको इंक्लूड लगा के अपने प्रोग्राम से ऐड कर लेना है, राइट। सो ये आपकी क्या है बच्चे? ये आपकी हेडर फाइल बोली जाती हैं, राइट। ये हेडर फाइल्स बोली जाती हैं। और हेडर फाइल्स क्यों बोली जाती हैं? क्योंकि ये प्रोग्राम के हेड पे लगी हुई हैं, विदाउट इनके आगे आपका काम नहीं होने वाला है। सो दीज आर दी हेडर फाइल्स, राइट, हैविंग सम प्री डिफाइंड फंक्शंस। और इनके अंदर क्या होगा? प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। अगर अभी आपको फंक्शन वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये मान लीजिए प्री डिफाइंड कमांड्स होंगे। अगर आपको ये फंक्शन वर्ड क्लियर नहीं है तो अदरवाइज फंक्शन ही मान लिए, वरना मैं लूजली आई कैन से कि प्री डिफाइंड कमांड्स होंगे, राइट। कमांड आप समझते होंगे कि कोई कमांड हम जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो फॉलो होता है, पहले से लिखा होता है, राइट। वो सारे इसमें आई स्ट्रीम में लिखे हैं, ओके। नाउ अब बात आती है बच्चे कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्या होने वाला है? यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड के बारे में हम अभी बात करते हैं। जस्ट हमें आगे और बढ़ने दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा पॉज लगाता हूं, इस सेकेंड पॉइंट को मैं पॉज लगा देता हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लाइन में देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है बच्चे क्या? ब्लैंक है। ब्लैंक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाइलर इज गोइंग टू इग्नोर दिस, कंपाइलर इज गोइंग टू इग्नोर दिस लाइन। ऐसा कहने का मतलब ये है, मैं क्यों इस ब्लैंक लाइन को बता रहा हूं कि बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं व्हाइट स्पेस है मतलब आप लाइन छोड़ के लिखते हैं प्रोग्राम, कोई एरर नहीं आने वाली। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ यू आर लीविंग सम स्पेस वेन एवर यू राइटिंग योर कोड। जब भी आप कोड लिख रहे होंगे तब आप स्पेस छोड़िए, इनफैक्ट आपको छोड़ना ही चाहिए। इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, प्रोग्राम को दोबारा पढ़ने की जो वे है वो अच्छा हो जाता है। अदरवाइज एक में ही सब
कचरा सा हो जाएगा, दैट्स नॉट सिम्स गुड, वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसलिए जैसे ये वाला पोर्शन था, इसको हमने ऊपर छोड़ दिया, राइट, ब्लैंक आपने स्पेस छोड़ दिया। फोर्थ लाइन में बच्चे लिखा हुआ है इंट मेन। ये क्या चीज है? मेन, इंट मेन। मेन जो होता है बच्चे, दिस इज योर अ फंक्शन, और वो कैसा फंक्शन है? मेन फंक्शन है, राइट, मेन फंक्शन है। एक्चुअल में दिस इज द गेट, एक्चुअली दिस इज अ गेट, दिस इज योर द मेन गेट ऑफ योर होम, राइट। फ्रॉम हेयर यू आर एंटरिंग योर प्रोग्राम्स बॉडी। जैसे HTML में भी होता है ना, बॉडी, बॉडी के अंदर जो लिखते हैं वही चीज आपके HTML पेज पे दिखाई देती है। इन द सेम मैनर योर प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम हेयर, main. This is the only function which you need to always include in your program, क्योंकि यहीं से बच्चे प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम मेन है। ये इंट क्या लिखा हुआ है? ये क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इंट लिखा हुआ है इसको आप मानिए कि इंटीजर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इंट लिखा हुआ है इसको आप मानिए कि इंटीजर लिखा हुआ है। अगर ये वाली बात अभी बहुत समझ में नहीं आई हो, कोई भी दिक्कत नहीं, जो अभी मैं बता रहा हूँ इंट और इंटीजर वाली, ये आगे आने वाले क्लास में मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूँगा। अभी आप ये मानिए कि एक इंटीजर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो इंटीजर लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन मेन है तो ये जब फंक्शन रन हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब कंप्यूटर इसको पूरा रन कर देगा, तो लास्ट में जो ये वैल्यू या हमको रिटर्न करने वाला है या हमको ये कुछ देने वाला है, वो उसका डेटा टाइप, मतलब जो टाइप होगा वो या ना तो वीडियो होगा, ना कोई ऑडियो होगा, ना कोई नंबर टेक्स्ट होगा, ABCD भी नहीं होंगे, वो हमेशा कोई नंबर में होगा, इंटीजर वैल्यू में होगा, राइट। ये लिखा हुआ है, हर फंक्शन के आगे लगा सकते हैं। फंक्शन जब हम देखेंगे तो और डिटेल में जानेंगे कि मैं क्या कह रहा था, बट आप यहाँ पे सिर्फ ये मानिए कि ये एक मेन फंक्शन है विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। क्या समझे? दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोग्राम, राइट। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, ये ब्रैकेट ओपन, और यहां देखिएगा बच्चे 7th पॉइंट पे ये क्लोज किया गया है, राइट। कर्ली ब्रेसेस लगते हैं, इससे ये पता चलता है इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक आपका मेन प्रोग्राम है। ये सिर्फ उसको रैप करने के लिए है, और बच्चे इसको लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने छोड़ दिया लगाना तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये एक तरीका है इसको लिखने का, राइट। बाकी अभी मैं आपको सिंटेक्स भी दिखा दूंगा। ओके, नाउ उसके बीच में बच्चे यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, काउट लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन 2 बार लगा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है, और फिर हमने इसको सेमी कॉलन से बंद कर दिया है। इसको बच्चे, इस सेमी कॉलन को हम टर्मिनेटर बोलते हैं। टर्मिनेटर जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं फुल स्टॉप, वैसे ही C++ की लैंग्वेज में एक सेंटेंस या एक लाइन या एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे हम टर्मिनेटर लगाते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ फुल स्टॉप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम इस सेमी कॉलन लगाते हैं जिसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं, राइट। ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, ये काउट लिखा हुआ है, काउट इज अ कमांड टू प्रिंट, या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट के लिए यूज करते हैं। आप इसको काउट ना पढ़ के सी आउट पढ़िए, विच इज बेटर, राइट। सी आप स्टैंड फॉर C++ एंड आउट स्टैंड फॉर आउटपुट, सी का आउटपुट, ठीक, सी का आउटपुट, ये कमांड हो गया। अब आप याद रखिएगा सी का आउटपुट कैसे मिलता है, सी और आउट, सी और आउट, सी आउट, राइट। एंड 2 बार हमको ये ब्रैकेट लेस देन इक्वल ग्रेटर देन लगाना पड़ता है, 2 बार, राइट। 2 बार हम इसको लगाएंगे, चाहे इसको आप कह लीजिए ये आपका एंगल ब्रैकेट है ओपन वाला, 2 बार लगाएंगे। आप ऐसे मानिए इसको 2 बार लगाएंगे, उसके बाद में जो टेक्स्ट आपको प्रिंट कराना है, जो आउटपुट लगाना है, उसको डबल कोट्स के अंदर में लिख देंगे, चाहे हेलो वर्ड लिख दें, चाहे हाय वर्ड लिख दें, चाहे अपना नाम लिख दें, एनीथिंग यू विल राइट हियर दैट विल बी गोइंग टू द प्रिंट ऑन योर स्क्रीन, राइट। फिर 6th लाइन में बच्चों क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। रिटर्न मतलब जो मैं आपको बच्चे ये बात बता रहा था कि यहाँ पे ऊपर देखिए मेन के साथ जो इंट लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा था कि ये फंक्शन आपको कुछ वापस देगा, मतलब जब सारा काम
कर लेगा फिर आपको कुछ रिटर्न में देगा, कुछ आपको रिटर्न गिफ्ट देगा, राइट, कि आई आई विल डू दिस, मैंने ये काम कर लिया है, अब मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ। वो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है कि क्या रिटर्न कर रहे हैं। ये बच्चे रिटर्न कर रहे हैं जीरो, ये रिटर्न कर रहे हैं जीरो, और फिर अगेन टर्मिनेटर, लाइन खत्म। जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं सी में, सी प्लस प्लस में और सी में, दोनों में, सारे में ये सेमी कॉलन टर्मिनेटर लगाया जाता है लास्ट में, राइट। आप यहाँ देखिएगा हर एक उस स्टेटमेंट में लगा हुआ है, राइट। तो ये जो प्रोग्राम है वो जीरो रिटर्न कर रहा है, और देखिए मेन के साथ इंटीजर लिखा था ना, ये इसका मतलब क्या है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, और जीरो एक इंटीजर होता है। आप में से कोई ये कह सकता है कि सर आप कह रहे हैं कि सेमी कॉलन हर एक लाइन के बाद लगता है, टर्मिनेटर हर लाइन के बाद लगता है, लेकिन मेन के बाद तो नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं लगेगा बच्चे, कभी भी फंक्शन के नाम के आगे टर्मिनेटर नहीं लगाते, क्योंकि जो ये फंक्शन है बच्चे वो यहीं पे खत्म नहीं हो गया, वो एक्चुअली यहाँ पे खत्म हुआ है जब इसका ब्रैकेट खत्म हुआ है, राइट। ये एक पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ के बाद स्टॉप नहीं लगाते, हम पैराग्राफ के बाद लाइन चेंज करते हैं। इनकी जो लाइन चेंज करना की बात है वो ब्रैकेट से ब्रैकेट चलती है, मींस दिस इज अ पैराग्राफ, राइट। अ पैराग्राफ लाइक इन इंग्लिश। तो यहाँ पे बच्चे ये क्या है, मेन है। मेन आपका यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। आप यहाँ चाहे लगाना चाहें टर्मिनेटर लगा दें, बट जरूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सी प्रोग्राम। एक बार नहीं समझ में आया है, अगेन मैं कहता हूं दोबारा वापस आके सुनिएगा, आपकी जरूर समझ में आने वाला है। और आगे आने वाले टाइम में, आज के दिन भी हम अभी दोबारा भी इसको थोड़ा सा हाईलाइट देखेंगे, देन यू फील बेटर, राइट। और जब ये कोड आपका लिख जाए, हमने कहां से बात शुरू करी थी, हमने बात शुरू करी थी कि यहां से, कि एक मैंने डाउनलोड कर लिया अपना कोड ब्लॉक यूजिंग दिस लिंक, और ये फाइल मैंने डाउनलोड करी और इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद कोड ब्लॉक को ओपन किया, फाइल मेनू पे गए, न्यू पे क्लिक किया, एक एम्प्टी फाइल खोली। एम्प्टी फाइल खोलने के बाद मैंने एक कोड लिखा जो ये लिखा हुआ है। ये कोड लिखने के बाद मैंने उसको सेव किया माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट cpp से। दिस इज माई प्रोग्राम्स file name, right? This is my file name and this is your extension of C++, right? फिर हम दोबारा फाइल मेनू पे गए और इसको मैंने क्या किया, सेव फाइल एज किया, उस फाइल को सेव कर दिया, मतलब सुरक्षित कर लिया। और उसके बाद में क्या हुआ, प्रोग्राम लिख गया, सेव हो गया। देन आफ्टर क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करने वाले हैं, देन गो टू दी अनदर मेन्यू, जहां पे फाइल मेन्यू ऊपर लिखा था आपके कोड ब्लॉक में, आगे देखिएगा बिल्ड लिखा होगा। बिल्ड में जाइए, और बिल्ड में जाने के बाद जब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, उसमें आपको मिलेगा बिल्ड एंड रन। आप उस पर क्लिक करिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। रन कर जाएगा मतलब एग्जीक्यूट कर जाएगा। और एग्जीक्यूट और रन का मतलब क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने प्रोग्राम में लिखे हैं उसको कंप्यूटर फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ही पड़ेंगे, राइट। दैट्स फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ देयर इज अ सिंटेक्स ऑफ योर, ओके आपका ये यूजिंग नेम स्पेस रह गया था, जो मैंने यहाँ पे पॉज लगाया था, कहा था कि ये मैंने अभी रोक रखा है, इसको मैं बताने वाला हूँ अब, राइट। ये आपका सिंटेक्स होने वाला है। मैं सिंटेक्स आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी हेडर फाइल्स। सबसे पहले लिखते हैं बच्चे हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स, राइट। दूसरी बार में हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और सेमीकोलन। फिर वाइट स्पेस रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। फिर हम लिखते हैं अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर में लिखते हैं हम बॉडी ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द C++ प्रोग्राम, राइट। अब मैं ये कह रहा था कि अगर आपने ये लगाया यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, राइट, अगर आपने ये नहीं लगाया है, अगर आपने लगाया है तो दैट्स ओके। अगर नहीं लगाया है तो क्या होगा, सपोज मैं इसको काट देता हूं, अगर ये आपने नहीं लगाया है तब क्या होगा, आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। और अगर उस एरर से बचना है तो जो आपने ये फंक्शंस लगाए हैं, सपोज सी आउट या सी इन, जो और भी कुछ फंक्शंस लगाएंगे, उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा std और ये कॉलन
दो टवार लगाने पड़ेंगे, मतलब पहले एस लिखिए, फिर टी लिखिए, डी लिखिए, मीन्स स्टैंडर्ड है, फिर एक कॉलन लगाइए, फिर एक और कॉलन लगाइए, तब ये बात लिखेंगे, अदरवाइज इसमें एरर आने वाली है। अगर मैं पीछे आपको ले जाता हूं तो आप देखिए, जो अभी मैं प्रोग्राम आपको समझा रहा था वहां पे एस टी डी कॉलन कॉलन नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? बिकॉज आई राइट हेयर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, राइट। ये आपके सी प्रोग्राम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आप इसको इस टाइम पे यही समझेंगे, बाकी कुछ टाइम के बाद आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाने वाला है, व्हाट आई एम सेइंग at this moment, right? So if you not write this using namespace standard in your code, then you need to always, जब भी आप सी आउट सी इन या और भी फंक्शंस लगाएंगे वहां पे आपको एस टी डी डबल कॉलन लिखना पड़ेगा। तो बच्चे ये क्या अच्छा तरीका होगा? ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप क्या करें, इसको ना लगाएं, राइट। मैं चाहूंगा कि एस टी डी ना लगाएं, इसकी जगह अच्छा ये होगा कि एक जगह, राइट, सिर्फ एक जगह आप क्या करिए, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख दीजिए, तो जिसकी वजह से आपको एस टी डी बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। सो this sounds good. This is your the simple the syntax of your बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मैंने आपको बताया कि आपको प्रोग्राम कहाँ लिखना है, कैसे सेव करना है। फर्स्ट प्रोग्राम छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बोला जाता है इसको स्टैंडर्ड वाइज, वो मैंने आपको बताया कि कैसे उस प्रोग्राम को लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे उसको सेव करना है, और कैसे आप उसको रन करा सकते हैं। अपने कोड ब्लॉक के बिल्ड मेन्यू में जाके बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे और वो खुद ब खुद एक स्क्रीन खुलेगी, उस पर प्रिंट होके आ जाएगा। अगर इसी प्रोग्राम को आप लिखेंगे, लिख के आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी व्हेन यू सक्सीड विद दिस फर्स्ट प्रोग्राम। बेटा कोई भी बड़ी सी बड़ी प्रोग्रामिंग क्यों ना हो, या बेटा दुनिया का कोई बड़े से बड़ा काम ही क्यों ना हो, शुरुआत तो करनी ही पड़ती है, राइट। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप एंड तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत ही सच बात है। तो एट दिस पॉइंट यू नीड टू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी, बिकॉज कोडिंग की जर्नी इतनी अच्छी जर्नी है जो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाती है। दैट्स टू गुड। सो कम टू द नेक्स्ट, सी प्लस प्लस आउटपुट क्या चीज है? इफ यू वांट टू प्रिंट योर टेक्स्ट, if you want to print your text or any other value, what you need to do, right, in C++, which is C++ output, the C out जिसको मैं काउट भी बोलता हूं, the C out object together with this symbol, इन सिंबल्स को ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे जानिए कि हम कैसे प्रिंट लगते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कीवर्ड और ये आपके ऑपरेटर मिला के इज यूज टू आउटपुट वैल्यूज, राइट, या फिर प्रिंट टेक्स्ट, एक ही बात है। मतलब COUT लिखें और ये लिखें, ये टू टाइम्स सेम ऑपरेटर को यूज किया गया है, लेस देन ऑपरेटर को, राइट। इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं टू प्रिंट समथिंग, टू प्रिंट योर टेक्स्ट, टू प्रिंट योर टेक्स्ट। और प्रिंट का मतलब ही होता है बच्चे आउटपुट, राइट, क्योंकि प्रिंट कहाँ आता है? मॉनिटर पे, और मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो C स्टैंड फॉर C++, आउट इज स्टैंड फॉर आउटपुट, दैट्स व्हाई दिस इज C आउट। यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है छोटा सा, आप समझ लीजिए बड़ी आसानी से। इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इंट मेन, सारी बातें वही, ये लगा हुआ है। हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करना था, तो देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा, C आउट लेस देन, दो बार मैंने लेस देन लगा दिया। इसको एंगल ब्रैकेट भी इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। बाकी आप ऑपरेटर्स आके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग ऑन योर स्क्रीन, देन यू नीड टू दिस कोड नेसेसरी है। उसके बाद डबल कोट्स में बच्चे आप जो भी लिख देंगे टेक्स्ट, वो कोई भी दुनिया का टेक्स्ट हो, वो प्रिंट होगा। और लास्ट में आपको क्या लगाना है? टर्मिनेटर। क्या लगाना है? टर्मिनेटर, या फिर इसको सेमीकोलन भी बोलते हैं। देखिए रिटर्न के बाद भी सेमीकोलन लगाया। नाउ कम टू दी अवर नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द नेक्स्ट? यू कैन ऐड, अब बात समझिएगा, यू कैन ऐड as many cout objects, you can add
as many सी आउट ऑब्जेक्ट एज यू वांट। आपको जितने सी आउट अपने प्रोग्राम में लगाने हैं बच्चे आप लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि एक लग चुका है अब दूसरा कैसे लगाएं, मुझे तो और भी वैल्यूज प्रिंट करानी थी। डोंट वेरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। आपको सी आउट का यूज कितनी बार भी कर सकते हैं, राइट। सो हाउएवर नोट दैट इट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ऐसा होगा कि जब आप दो बार काउट सी आउट लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन चेंज होकर प्रिंट होगा। मतलब कि हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस ऐसा प्रिंट होगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये बिल्कुल इसको इनलाइन प्रिंट करने वाला है। इसका जो आउटपुट आएगा बच्चे वो ऐसा ना कि ये आएगा हेलो वर्ल्ड, ये आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, ये आउटपुट आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई लाइन चेंज नहीं हुई। HTML में भी जैसे हम BR लगाते हैं ब्रेक के लिए, इसमें भी हमें कुछ ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें नहीं लगाया है हमने, तो इसका आउटपुट ये आने वाला है, ना कि ये आने वाला है, राइट। और इसमें बड़ी ही सावधानी आपको रखनी चाहिए। सपोज इस हेलो वर्ड की जगह आपने लिखा होता क्या लिखा होता, 10 लिखा होता, राइट। और आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस की जगह बच्चे आपने लिखा होता 00। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है आउटपुट आपका, आप चाह रहे थे कि ये आए 10 और 00, लेकिन ये ना आके आएगा क्या 1000, ये आपका आउटपुट आए, बट ये ना आके आएगा क्या 1000। दिस लुक्स लाइक 1000। सो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाने वाली है। लेकिन आप लाइन चेंज करना चाहते हैं बच्चे, सी में इसके लिए सुविधा फैसिलिटी बनी हुई है। उससे क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सी प्लस प्लस में और सी में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी बच्चे रहती हैं। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई परेशानी की बात है। अगर आपने सी जानी हुई है तो सी प्लस प्लस जानना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नो डाउट। और फिर एडिशनली जो सी प्लस प्लस के फीचर्स हैं उनको भी हम आसानी से लर्न कर पाएंगे। लेकिन आप ये भी मत सोचिएगा कि अगर आपको सी नहीं आती है तो ये नहीं सीख पाएंगे। जिसको सी नहीं आती है वो और आसानी से सीख लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं होगी जो आपको डिफेंस करे कि ये सही कि वो गलत, कि सी में कैसा होता था इसमें ऐसा होता है। आप तो प्लेन नए तरीके से सीख रहे हैं, राइट। सो इन बोथ केसेस दिस इज गुड। सो हाउ टू चेंज योर लाइन टू इंसर्ट अ न्यू लाइन, you can use the this /n। आपको /n लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? जिस भी लाइन के बाद आप लाइन चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिख जाए और लाइन चेंज हो जाए, तो हमने /n लगा दिया, राइट। और जब लाइन चेंज हो गई है तब जब प्रिंट होगा तो आई एम लर्निंग नेक्स्ट लाइन से होगा, मीन्स लाइक दिस हेलो वर्ल्ड, और लाइन चेंज। अब आई एम, पहले लाइन चेंज हुई है, फिर ये दो लाइन है ना, पहला इंस्ट्रक्शन ये है, दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है। आप समझिएगा, लिखा गया हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, यहां तक गया। उसके बाद में हुआ लाइन चेंज का कमांड, लाइन चेंज हो गई, आपका कर्सर यहां आ गया। फिर ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, सी आउट, मतलब कुछ आउटपुट देना है, टेक्स्ट देना है आउटपुट, आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, नाउ आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस लिख जाएगा लाइन चेंज होने के बाद, राइट। आप ये भी सोच सकते हैं बच्चे, अगर मैंने इसको यहाँ ना लगाया और यहाँ लगा दिया, इस डबल कोट्स और आई के बीच में /n लगाया हुआ है, तो क्या होगा? पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। आप लाइन बाई लाइन समझिएगा। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ही, क्या प्रिंट हुआ? हेलो वर्ल्ड, राइट। लाइन चेंज नहीं हुई बच्चे, कर्सर अभी यहीं पे ही है, यहीं पे प्रिंट होने की कोशिश करेगा। पहली लाइन कंप्लीट हुई, टर्मिनेटर मिला, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड, कंप्लीट। अब हम सेकेंड वाले पे आए। देखिए सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे हम रीड करने जा रहे हैं। हम का मतलब कंपाइलर से है मेरा, सी आउट स्टैंड फॉर आउटपुट कमांड, ये पूरे का पूरा। फिर क्या आउटपुट करने वाले हैं? डबल कोट्स के बाद आई नहीं पढ़ेगा बच्चा, पहले आई से पहले लिखा हुआ है क्या? /n, मतलब कि आपका कर्सर यहां से हटके यहां आ जाएगा, मतलब लाइन चेंज हो गई। नाउ स्टार्ट राइटिंग आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। इस कंसेप्ट को जरूर समझिएगा। इस सिर्फ लाइन चेंज करने का कंसेप्ट ही नहीं बताया मैंने, आपको ये बताने की कोशिश करी है कि स्ट्रक्चर
प्रोग्राम का बहुत मैटर करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाई है, कैसे लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, उसका क्या रिजल्ट है, वो आउटपुट क्या आएगा, कैसे आएगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज द कोड फॉर चेंजिंग अ लाइन to insert white space or a new line in your output screen, right? Now come to the next स्लाइड। आपको मैंने बताया कि बच्चे यहाँ पे होता है स्लैश एन, जिससे हम लाइन चेंज करते हैं, मतलब न्यू लाइन ले आते हैं, राइट। एक और तरीका होता है न्यू लाइन लाने का, दैट इज ENDL, ठीक है। एंड माने होता है खत्म होना, एंड ऑफ, एल स्टैंड फॉर, L stand for line, means end of line. Another way to insert a new line is with the end L manipulator. इसमें क्या होगा, सब कुछ वही रहा, हेलो वर्ल्ड, यहाँ बीच में हमने पहले स्लैश एन लगाया था, वो इस केस में नहीं लगाया है, हमने दोबारा वही ऑपरेटर यूज किया। कौन सा ऑपरेटर यूज किया, ये वाला ऑपरेटर यूज किया, और क्या लिख दिया, एंड एल, राइट। इससे बिल्कुल सेम वही काम होने वाला है जो हमने पहले प्रोग्राम में, यानी कि यहाँ पे किया था, जहाँ पे हमने यहाँ पे स्लैश एन लगाया था, राइट। ये वाला जो काम किया था वही काम हमारा एंड एल, और एंड एल से पहले ये दो ऑपरेटर्स लगेंगे जो हम काउट के बाद लगाते हैं, राइट। इस तरीके से हमने इसको न्यू लाइन के लिए चेंज किया। दोनों बच्चे सेम काम करने वाले हैं, बट ब्रॉडली आपका स्लैश एन ही लोग यूज करते हैं, एंड एल का थोड़ा, या फिर कह सकते हैं यूज लोग नहीं करते हैं। रीजन ये क्या, ये बहुत पुराना है, ये सी में भी चलता है, लोग ज्यादा फैमिलियर हैं इससे, राइट। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नथिंग। आपको मैं अब बताना चाहूंगा, आज जो आपने सीखा उसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं, फिर नेक्स्ट आप क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आज आपने जाना C++ प्रोग्रामिंग क्या है, उसका हम क्यों यूज करते हैं, और अगर मुझे पहला प्रोग्राम लिखना है, राइट, तो मुझे क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये है कि आपके पास एक नोटपैड एटलीस्ट हो, और उसके लिए और एक कंपाइलर हो। नोटपैड पे आप लिखेंगे अपना प्रोग्राम, और कंपाइलर से करेंगे उसको कंपाइल, यानी कि कन्वर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को, जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि C++ में लिखा गया है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मशीन लैंग्वेज में, या ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को समझ में आती है, मींस कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अगर आप नोटपैड या कंपाइलर को अलग अलग नहीं रखना चाहते, देन यू कैन यूज IDE। IDE मैंने आपको बताई, कोड ब्लॉक आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसमें जो फाइल है उसको एग्जीक्यूट कराना है। जब आपका वो कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो जाएगा, देन यू गो इन द फाइल मेन्यू, फिर न्यू पे क्लिक करिए, एक फाइल खुलेगी, न्यू एक ब्लैंक स्पेस खुलेगा, उस ब्लैंक स्पेस में आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, छोटा सा प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। फिर उसको रन करेंगे, बिल्ड मेन्यू में जाके बिल्ड एंड रन लिखा होगा, बिल्ड एंड रन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, देन यू फील हैप्पी, एंड द फर्स्ट प्रोग्राम इज executed properly, right, and successfully your program is executed. Then after what happened, मैंने आपको बताया कि अगर आपको दो सी आउट लगाने हैं, सबसे पहले तो ये बताया कि आप मल्टीपल जितने भी चाहे सी आउट अपने प्रोग्राम में लगा सकते हैं, जितने भी चाहे बच्चे, बिल्कुल मत घबराइएगा। और अगर आप दो लाइन को, एक लाइन को चेंज करना चाहते हैं, मींस नेक्स्ट लाइन से कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको मेथड बताया कि स्लैश एन का यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको लाइन चेंज करने की जरूरत पड़े। एक अल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको बताया जिसमें बोलते हैं एंड एल, एंड स्टैंड फॉर एंडिंग ऑफ द लाइन, एंड एल स्टैंड फॉर लाइन, राइट। सो एंड ऑफ लाइन ये इसका पूरा नाम हो गया, जिसको हम शॉर्ट में क्या, एक्चुअली ये इसका कमांड है, ये इसका मैनिपुलेटर नेम है एंड एल, उसका हम यूज करेंगे और लाइन चेंज कर देंगे। नाउ अब ये तो बात हुई कि आज हमने क्या सीखा, कल हम क्या सीखने वाले हैं। कल बच्चे हम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, अपने प्रोग्रामिंग जर्नी को एक स्टेप और आगे ले जाने वाले हैं। सिर्फ प्रोग्रामिंग तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए तो होती ही नहीं है बच्चे, ये तो एक स्टार्टिंग है, जस्ट कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाए कि हाँ इस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं। अब इस प्रोग्राम में
हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, जानेंगे कि वेरिएबल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको प्रोग्राम में हमें कहाँ पे यूज़ करना होता है, क्यों यूज़ करना होता है। इस तरीके से वन बाय वन हम अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड लेट्स कीप क्रैपिंग CBC 8 and keep liking YouTube comments, right? And hit on the bell icon, join the Telegram group, and subscribe it your An Academy by using the code LIVMP for getting maximum discount on your subscription charge, right? तब तक के लिए बच्चे, thank you and have a nice day and take care.